Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area. And today's part is part 18. Those who have not watched the previous parts, that is from 1 to part 17, I have shared the link at the end of the video. So do watch those parts and then you see this part. Then what will happen? The concept will be much more clear and it will be easy for you to solve these sums. Now today we are going to solve the workout portion, the last portion of this chapter. So in the workout portion, the first sum, question number 1 is what? Choose the correct option. That means they are talking about what? MCQ, okay, multiple choice question, okay. So choose the correct option. What is the first question? Find the area of the square part. You have to find out the area of the square part whose perimeter is 96 centimeter. So here if I want to do the rough, okay, if I want to do the rough here, perimeter is told of a square park. So this is a, let me draw the square park. This is a square shaped park, clear now? So all the sides are equal. So perimeter is told. So rough we need to do. So perimeter is told how much? 96 centimeter. And what is the formula for perimeter of a square? Perimeter of a square means 4 into side. And that is what? 96 centimeter. So from here I will get the side 96 centimeter by 4. So we can cancel now. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 1 left. So 1 will become what? Here comes, it becomes 16. So 4 fours are 16. So I got the side of the square. Each side is how much? 24. Now I can easily find out the area. So area will be what? Area of square. Area of square park. They are telling square park. The formula is what? Side square unit square. So side is how much? 24 square centimeter square. So 24 into 24 centimeter square and it becomes how much? 576 centimeter square. So this is the answer, 576. So let us see here which is matching. The first one you can see 576. So what we can write? Answer, clear? 1 and this is A and the option is Roman 1, 576 centimeter square. So we got the first answer, clear? Now question number B. B, what it is telling? What happens to the area of a square if its side is doubled? If you double the side, whatever the side is, if you double it, then what will happen to the area, okay, of the new square formed? That means there is a original square is there and one new square is there. So for that, let me rough this portion, okay, the rough portion. So here two things are here. One is the original square and another one is what? The new square, okay. So original square, if I want to draw, let me write here rough. Original square, suppose this one. This is the original square. So this is original square, clear? So this original square, all the sides are equal. So if I take the side as A, okay, so this is also A, this is also A, all the sides are A. So area will be what? Area will be what? Side square. So it will become what? A square, clear? It will become A square. Then the new square, okay, new square. New square will be what? It is telling that what happens to the area of a square if its side is doubled. So this is A, the new square, the side will be doubled. So it will become A double will be what? If the side is A,
then double of A will be what? 2A. So it will become what? 2A, 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 2A. All the sides will be doubled. Okay. A double means 2A. ठीक है? A double means 2A. That means twice A. Clear? So what I will write here? Area. Here area will be what? Side. Same formula. Side square. So side square will be what? 2A and then square. So 2 square is what? 4. 4A square. Clear? Now this 4A square means what? If you see nicely, 4 into A square means the area of the original square. That means 4 into area of this A square. Area of original square. Clear? That means 4 into means what? 4 times area of original square. Original square. 4 times area of original square. So where it is? See, let us see the first option. The area becomes 4 times the area of the original square. See, 4 times. So this will be the answer, number 1 only. So what will write? Answer. Okay, question number 1, B, and the option is Roman 1. That means we can write the area becomes, okay, 4 times the area of original square. So I hope you have understood question number A and B nicely. Now question number 1C. So let us see what they are telling. क्या बोल रहा है इधर में? If a square has an area of 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक तो स्क्वायर है, उसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, मतलब पेरीमीटर हमको निकालने के लिए बोल रहा है. तो स्क्वायर है, इधर में मैं रफ करूंगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना है? एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. इधर से हमको साइड मिल जाएगा, तो साइड इक्वल टू स्क्वायर, उधर जाने से स्क्वायर रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अभी हम साइड कैसे निकालेंगे? साइड जब तक नहीं आएगा तब तक पेरीमीटर हम लोग नहीं निकाल सकते. तो 64 मतलब मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितना आ गया? एक तो 8 आएगा, एक तो सेंटीमीटर आएगा. आ गया मेरा साइड. तो जब साइड आ गया तब पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है? 4 इंटू साइड. यही है फॉर्मूला, क्योंकि चारों साइड सेम है स्क्वायर का. तो 4 इंटू 8 सेंटीमीटर आ गया कितना? 32 सेंटीमीटर. चलो देखते हैं कौन सा राइट है. सो देखो पहला वाला ही है, लिखा है 32 सेंटीमीटर. तो यही होगा करेक्ट आंसर. ठीक है. कौन सा मैं और नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग को जस्ट मैं टिक मार्क करके दे रहा हूं कि रोमन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, नंबर डी, 1 हेक्टर इज इक्वल टू. ये तुम लोगों को थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, ये बहुत इजी है. 1 हेक्टर मतलब कितना मीटर स्क्वायर होता है? 1 हेक्टर मतलब 10,000. ठीक है, ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टर. अभी नंबर ई क्या है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? मिलीमीटर स्क्वायर. सो ये वाला 480 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर से हमको 480 सेंटीमीटर से हमको मिलीमीटर जाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10. मगर इधर में सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. एक तो सेंटीमीटर के लिए 10 और एक तो सेंटीमीटर के लिए 10. ठीक है. तो हो गया कितना? मिलीमीटर स्क्वायर. समझ में आया या नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो एक तो सेंटीमीटर के लिए 10, बिकॉज 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर. क्लियर नो? तो 2 सेंटीमीटर है और एक तो 10. तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने से 48, और इधर में एक तो 0, इधर में एक तो 0, इधर में एक तो 0, तो 3 तो 0 आ जाएगा. दैट मीन्स 48,000. ठीक है. मिलीमीटर, मैंने सिर्फ m लिख दिया, मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर मैच हो रहा है. ये 2 0 है, ये 3 तो देखो ये वाला मैच हो रहा है. 48
480000। तो यही है हम लोगों का आंसर 480000, ठीक है। और इधर में कौन सा होगा 10,000, इधर में मैंने नहीं लिखा तो लिख देने से अच्छा है 10,000 मीटर स्क्वायर। और नंबर एफ तो वेरी इजी है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो यही है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये है आंसर नंबर एफ, ठीक। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर जी। तो जी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद बेस 44 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डेंस ऑल्टीट्यूड 14 सेंटीमीटर। ये एंड कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होगा, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो बेस दिया है पैरेललोग्राम का और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट दिया है पैरेललोग्राम का, तो हमको एरिया निकालना है। वेरी इजी, हाँ, ऐसा सम तुम लोगों ने किया है, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेलल टू दिस वन पैरेलल टू दिस वन, एंड अगर बेस है, बेस कितना है, बेस है 44 सेंटीमीटर, और ये अगर हाइट है, ये अगर हाइट कितना है, हाइट है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इजीली वी कैन फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस है 44 इंटू हाइट कितना है 14, और हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आंसर। सो 4 4 16, 1 4 1 4 5, अगेन 56, तो 6 प्लस 5 11, 1 देन 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हम लोग का आंसर आ गया 616। सो कहाँ से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इधर में नहीं हो रहा है, इधर में नहीं हो रहा है। ऑप्शन 4 देखो इधर में मैच हो जा रहा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला नंबर 8, ठीक है। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 4 पाई। तो अभी सर्कल के बारे में बोल रहा है, सर्कल, तो सर्कल का ये होता है रेडियस, ठीक है, r। तो सर्कमफरेंस बोल दिया है, सर्कमफरेंस कितना है, सर्कमफरेंस इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। मैं तुम लोग कमेंट में जाके बोलना कि मैं जल्दी जल्दी सिखा रहा हूं ना, ठीक है, ये स्पीड ठीक है या नहीं, क्योंकि ये MCQ है, इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड थोड़ा ज़्यादा थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो तुम लोग कमेंट में जाके मुझे बोलो कि थोड़ा धीरे धीरे बोलने के लिए, ठीक है, तो मैं फिर से वही धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। तो सर्कमफरेंस है, दिखा रहा है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 4 पाई। तो बोल दिया है सर्कमफरेंस इज व्हाट, 4 पाई। सर्कमफरेंस मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, 4 पाई है। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पाई। अभी देखो दोनों साइड में पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्या पड़ा है, 2r इज इक्वल टू 4। तो r कितना होगा 4, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 2 तो आ गया r कितना हो गया 2, r आ गया 2। अभी हमको क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर फॉर्मूला। तो पाई रहेगा, r का जगह में मैं 2 लिख दूंगा, 2 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट भी तुम दे सकते हो। तो पाई और 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो आ गया कितना 4 पाई, ठीक है। तो आंसर हम लोग का आ गया 4 पाई। यहाँ पे कहाँ पे है 4 पाई, ये देखो इधर में स्टार्टिंग में ही देखो 4 पाई है, तो यही होगा हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर आई। तो क्वेश्चन नंबर आई में क्या बोल रहा है, द अप्रोक्सीमेट, देखो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। तो ये मैंने पहले भी सिखाया है, पाई मतलब 22/7, मगर इधर में 22/7 तो नहीं है, इधर में डेसिमल में दिया हुआ है। तो डेसिमल में जब दिया हुआ है हम इसको डिवाइड करेंगे, 22 अंदर 7 बाहर, तो 7 3 21, 1 रिमाइंडर, अभी नहीं है कुछ तो डेसिमल आएगा तो 0 आ जाएगा, 7 1 7, तो 3 आ गया, फिर 0, 7 4 28, 2 रिमाइंडर, तो कितना आ गया 3.14। तो अभी देखो 3.14 कहाँ है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, देखो ये इधर में 3.14, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई।
अभी देखो एमसीक्यू का लास्ट वन जे, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने तुम लोग को सिखाया है, सेंटर कॉमन रहेगा, ये एक ठो सर्कल और एक ठो सर्कल होगा ये वाला। ठीक है, इधर में चलो रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक ठो और एक ठो सर्कल। ठीक है, तो ये आउटर, ये ब्लू वाला क्या है, इनर सर्कल। तो आउटर वाला क्या है, कैपिटल आर। देखो, विथ आउटर एंड इनर रेडियाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, मतलब आउटर पहले बोला है इसलिए कैपिटल आर, इनर रेडियाई उसके बाद बोला है इसलिए स्मॉल आर। तो इनर रेडियाई क्या होगा, स्मॉल आर। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये एक तो सर्कल है, ये एक तो सर्कल है, इसके इन बिटवीन मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमको निकालने के लिए बोला है। पोलो चॉकलेट खाया है ना, पोलो चॉकलेट, तो पोलो जैसा। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमको निकालने के लिए बोला है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया, ठीक है, एरिया व्हाट, बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, ये कैसे निकालेंगे ना, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ये है फॉर्मूला। आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करने से ही हमको आ जाएगा। तो आउटर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई, मगर रेडियस क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। और इनर एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई, बट वी टू टेक स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग अच्छे से देखने से पाई कॉमन आ जाएगा। देखो, इधर में पाई है, इधर में पाई है, पाई कॉमन आ गया। तो क्या बचा है, तो बचा है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यही बचा है। तो ये किससे मैच हो रहा है, ये देखो पहले ही, फर्स्ट वन इट इज मैचिंग, यस नो, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरा ख्याल से एमसीक्यू फ्रॉम द फर्स्ट वन टिल नंबर जे you have understood nicely. Now students, those who are new in this channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. Now class 7 students, we will solve question number 2. So what it is telling, let us see. The area of a rectangular garden is 690 meter square. So rectangular garden बोल दिया है, तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो गार्डन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो गार्डन का ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। ठीक है, और इसका एरिया बोल दिया, एरिया मतलब अंदर वाला, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है एरिया, तो एरिया बोल दिया। एरिया कितना है, 690 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जब शुरू करेंगे तब लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन, तो क्या होगा, 690 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया पहला सेंटेंस। उसके बाद क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ द गार्डन इज 30 मीटर, तो लेंथ भी बोल दिया है, लेंथ कितना, 30 मीटर। तो अभी हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ वही रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो लेंथ हम लोग कैपिटल एल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना है, 30 मीटर, तो लेंथ भी बोल दिया है। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द ब्रेथ, यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ। तो ब्रेथ हमको निकालना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है,
तुम लोग ये सब नहीं लिख सकने से सिंपली बी लिखो, ठीक है। तो ये निकालना है ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हमको पेरीमीटर भी निकालना है, दो ठो चीज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। ये भी हमको निकालना है। रेक्टेंगुलर गार्डन अगर तुम नहीं लिख सकते सिर्फ गार्डन लिखो, ठीक है, तब भी हो जाएगा। तो अभी कैसे निकालेंगे, हम लोग को मालूम है फॉर्मूला क्या है ना, वी नो दैट, ठीक है। व्हाट वी नो दैट व्हाट, ऑलरेडी एरिया इज गिवन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है 690 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन इज 690। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 690 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या निकालना है, ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 690 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कहां आएगा, नीचे में लेंथ आएगा, ठीक है। जब ऐसा आ गया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेथ बी लिखेंगे, 690 लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं है, और लेंथ का जगह में क्या लिखेंगे 30 मीटर, ठीक है। अभी हम लोग काट सकते हैं, मीटर और ये स्क्वायर कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आ गया 23 मीटर। मैं इसके बाद यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इम्प्लाइज बी इक्वल टू 23 मीटर, ठीक है। हम लोग का ब्रेथ आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, चलो लिखते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, तो 2 होगा, लेंथ कितना है 30 मीटर, तो 30 लिखेंगे, प्लस ब्रेथ कितना है, अभी अभी हम लोग को मिला है कितना 23, और यूनिट क्या होगा मीटर, तो 2 इंटू 30 प्लस 23 कितना हो गया 53 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 106 मीटर, ठीक है। तो आ गया ये हम लोगों का आंसर, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो आंसर इधर में ही लिख सकता हूं, नहीं तो हम लिखेंगे क्या, हैंस, थोड़ा अच्छा से लिखने से, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, और वो क्या है बी, कितना है 23 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितना आया 106 मीटर। तो ये हो गया दो ठो, ठीक है, दो ठो आंसर ही हमको मांगा है। अभी हम इसको ऐसा कर देंगे और उसके बाद ANS, ठीक है, दैट मीन्स आंसर। तुम फुल फॉर्म भी लिख सकते हो WER, ठीक है, आंसर, ठीक है। आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू फाइंड आउट द ब्रेथ and how to find out the perimeter when the area is given and when length is given, you can do it. Okay, so practice this sum nicely. Now one more thing, one more tip I want to give. Some of you are thinking, sir, why you are doing like this way, we can do in another way. Yes, in another way also you can do. I am not telling that you cannot do, because one sum from starting only I am telling you, one sum we can do in many ways, ठीक है। कोई कोई इसको करेगा कैसे करके, ना डायरेक्टली लिखेगा, क्योंकि ब्रेथ निकालना है ना, B इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ऐसा भी कर सकते हो, कौन बोल रहा है कि नहीं कर सकते, हाँ। तो B मतलब ब्रेथ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया कितना है 690 मीटर स्क्वायर, बाई लेंथ क्या है 30 मीटर, ठीक है। तो इस तरह भी तुम लोग कर सकते हो, काट दोगे तो 0 0 कट हो गया, और इसको काटने से 23 आ गया, सो देखो 23 मीटर। तो इस तरह भी तुम लोग कर सकते हो, मगर मैं क्यों
ऐसा करके कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को स्टेटमेंट, ठीक है, ये होता है स्टेटमेंट सम, ये होता है स्टेटमेंट सम ओनली, मगर बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में करोगे तो, हाँ, छोटा छोटा करके सम करोगे, जब क्लास 9 में आ जाओगे, जब क्लास 10 में आ जाओगे, तब तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और अभी से अगर स्टेटमेंट अच्छा से लिखकर अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्लास 9 और क्लास 10 में एकदम द वर्ड प्रॉब्लम सम्स फ्रॉम मेंसुरेशन चैप्टर, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए